بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تنازع کے حل کے حوالے سے اہم پیش رفت جاری ہے۔ ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اپنا جواب دیا ہے، جبکہ جنگ بندی منصوبے پر جواب پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے نے تصدیق کر دی ہے، کہا کہ پاکستان مسئلے پر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تنازع کے حل کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے۔ بڑی خبر سامنے آئی ہے، ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اپنا جواب دے دیا ہے۔ جنگ بندی منصوبے پر جواب پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے تصدیق کر دی کہ پاکستان مسئلے کے ثالث کا حل کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تنازع کے حل کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت جاری ہے۔ ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اپنا جواب دیا ہے، جبکہ جنگ بندی منصوبے پر جواب پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے نے تصدیق کر دی ہے اور واضح کیا ہے کہ پاکستان مسئلے پر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ایران کی جانب سے مثبت جواب کے منتظر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کی جانب سے بھی واضح کیا گیا کہ جو بیک ڈور چینل پالیسی اور ساتھ مذاکرات کا عمل ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے جاری ہے، اور دونوں فریقین نے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ اور اب ایک بار پھر جب یہ معاملہ کلوز ہونے کی طرف آ رہا ہے تو ایران نے ایک بار پھر یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور ایران کی جانب سے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جواب بھجوایا گیا ہے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ جی ایچ کیو میں مارکہ حق کی یاد میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کی ناقابل فراموش شکست اور ذلت کا قصہ سنا دیا۔ خبردار کیا پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہداء کی قربانی کو امانت، طاقت کو ذمہ داری، کامیابی کو خدائے بزرگوں برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے شہداء مارکہ حق کو یادگار جملوں میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بے مثال کامیابی کا سال مکمل ہونے پر بھارت کو خبردار اور افغانستان کو تنبیہ کی۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران جنگ پر پاکستان کے تشخص کی بھی خوب وضاحت کی۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب سفارتکاری پر قومی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں لگائی گئی دفاعی نمائش عوامی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جنگی ساز و سامان کو دیکھنے کے لیے شہر امڈ آیا۔ مزید احوال بتا رہی ہیں بیورو چیف آزاد کشمیر بشارت مغل۔ جی بشارت۔ بالکل دارالحکومت مظفر آباد میں موجود ہوں، جہاں پاک آرمی کی جانب سے دفاعی جو نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح سے پورا شہر امڈ آیا ہے اس جو دفاعی نمائش کو دیکھنے کے لیے۔ مختلف جنگی ساز و سامان رکھا گیا ہے۔ کچھ فیملیز اور اسکول کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ اس موقع پہ اس نمائش کو دیکھ کے وہ کتنے پرجوش ہیں۔ بیٹیا کیا فیلنگز ہے آپ کی یہاں؟
मार्का हक में जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए थे, आज वो मैंने अपनी आंखों से अपने बहुत नज़दीक देखे और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी मैं अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं हुई और मैं ये चाहती हूँ कि पाक फ़ौज इसी तरह हमेशा बहादुरी से इंडिया का मुकाबला करती रहे और हम पाक फ़ौज के साथ हैं और उनके लिए हमेशा दुआ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहोगी बेटिया? मार्का हक के बारे में मैं कहती हूँ, आज जो जंगी हथियार पाक फौज ने इस्तेमाल किए हैं इंडिया के खिलाफ, आज मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाक फौज इसी तरह लड़ती रहे और हम उनके साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। बच्चे बहुत पुरजोश हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है यहाँ? जी, जैसे कि ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इन्होंने पहले से बताया कि जैसे बुनियानुल मरसूस के बारे में हमें आगाह किया गया और बहुत सारा जो हम देखते हैं आज तक इंटरनेशनल टीवी पे हम देख रहे हैं हमारी पाक फौज क्या क्या काम कर रही है और अभी हमने देखा जो इन्होंने नुमाइश की तो बहुत ही मज़े से चीज़ों को ये समझा रहे हैं और इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त इस जंगी नमाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान रखा गया है और यहाँ हर शख्स इस वक्त आके उसके जज्बात बहुत दीदनी है अपनी पाक फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए। वो ये दुआ कर रहा है कि इसका परचम हमेशा सरबुलंद रहे और पाक आर्मी को कश्मीरी आवाम ये यकीन दिला रही है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ रहेंगे। जी, मार्का हक की पहली सालगिरह कराची पोर्ट ट्रस्ट के तहत बोट रैली निकाली गई। रैली में कश्तियों की भरपूर शिरकत से जश्न का लुत्फ दोबाला हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मार्का हक की पहली सालगिरह पर कराची पोर्ट ट्रस्ट के तहत बोट रैली निकाली गई। कराची पोर्ट ट्रस्ट का मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। बोट रैली में कश्तियों की भरपूर शिरकत, कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया गया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के जुर्रत और साबित कदमी को सलाम पेश किया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट का वतन के मुहाफिजों से अकीदत और यकजहती का इजहार, शहदा और गाजियों को सलाम अकीदत पेश किया। मुल्क के तुलो अर्ज में मार्का हक की याद जोशो खरोश से मनाई जा रही है। शहर शहर जश्न की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मार्का हक में कामयाबी, मुल्क में शहर शहर जश्न। खानपुर में मार्का हक की कामयाबी पर रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। पाक फौज ने जिस जज्बे के साथ हमारे अजली दुश्मन हिंदुस्तान को शिकस्त दी और वो शिकस्त ऐसे आनन फानन थी कि उनकी सोच में भी नहीं था। कोट अद्दू और बुरेवाला में भी कौमी यकजहती के अज़म का भरपूर इजहार किया गया। मंडी बाउद्दीन में म्यूजिकल शो ने मेला लूट लिया। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में भी रैली निकाली गई। खुजदार में भी सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकली। बसीबा में भी सिविल सोसाइटी ने बड़ी रैली निकाली। तुरबत में शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। चमन में भी अवाम ने कौमी यकजहती के नारे लगाए। करक में भी अवाम सड़कों पर निकले। खैरपुर में रात गए आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। कंदकोट में भी जश्न हुआ। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी मार्का हक के जश्न में मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान यकजहती कौंसिल की जानिब से लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से दाऊद चौरंगी तक शानदार रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं साथ गुज्जर से। जी साथ जी बिल्कुल, पाकिस्तान यकजहती कौंसिल की जानिब से आज एक रैली का जो है वो इनेकाद किया गया। ये जो रैली निकाली गई मार्का हक के लिए जो जश्न मनाया गया, 1 साल मुकम्मल होने पर ये रैली निकाली गई। मलीर के नौजवानों ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाल कर मार्का हक की खुशी में जो 1 साल मुकम्मल हुआ है, ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसोई पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। हम पाकिस्तान हैं और हम पर जो भी हमला करे तो हम अपने साथ आधी दुनिया को लेके जाएंगे। मोदी तो एक मुल्क का जो है ना वजीर आजम है, हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे। पाकिस्तान है, ये कुव्वत है। मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद थे जो कि ये बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो भारत का जवाब दिया। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह मरी में भी मार्का हक मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मरी में एक अजीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मरकज़ सरमरी में भी मरकज़ हक जो है भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। एक साल गुजर चुका है, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। यहाँ पर आर्ट्स कौंसिल में यहाँ पर उससे पहले एक भरपूर प्रोग्राम किया गया जिसमें स्कूलों के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की, जिसमें इंतजामिया, ज़िली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया मौजूद थी। जबकि यहाँ पर इस टाइम माल रोड पर जो रैली निकाली जा रही है मरकज़ हक के हवाले से, और यौम मरसूस को एक साल मुकम्मल होने पर सालगिरह मनाई जा रही है। इसमें जो है तहसील इंतजामिया, ज़िली इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर शिराजी, ब्रिगेडियर अहमद नवाज, स्टेशन कमांडर और समा शवाक सरवर और बिलाल यमीन सत्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर भरपूर तरीके से रैली निकाली जा रही है और यौम मरसूस मनाया जा रहा है। जी, ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त बन गया है। नाजुक हालात में हमारी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी इलाक़ाई तनाज़े में इश्तिआल अंगेज़ी के बजाय अमन और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने मार्के हक की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। एक बार फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ने पूरे खित्ते में और बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और बहीरा अरब जैसे अहम समंदर गुज़रगाहों में सलामती की खदशात को जन्म दिया। इन नाजुक हालात में पाक बहरिया ने समंदर में अपनी ऑपरेशन तैयारियों को मज़ीद खबर देंगे आपको कि मार्का हक में पाकिस्तान का रद्द अमल नफातुल्लाह दुरुस्त और पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। सदर, वज़ीर आज़म समेत कौमी कायदीन ने कहा कि एक साल कबल पाकिस्तान को आजमाइश में डाला गया, लेकिन कौम ने पलक झुकाए बगैर उसका सामना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया कि जब भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने हमारी सरजमीन पर बिला इश्तिआल हमले किए तो पाकिस्तान ने हिम्मत और इत्तेहाद के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने साबित कर दिया कि मुल्क की दफा में कौम और अफवाज साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मारका हक अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र बजा लाने का दिन है। आज हम दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त और पाकिस्तान के बहादुराना मौक़िफ़ की याद ताज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, ज़मीन, समंदर, फ़ज़ा और साइबर के शोबों में हमारी फ़ौज के मरबूत जवाब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क साबित कर दिया है। मार्का हक गवाह है कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद लेकिन गैरतमंद कौम है जिसे दबाया नहीं जा सकता। पाक फौज के सरबरा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस मौके पर पूरी कौम और मुसल्लह फ़ौज के तमाम रैंकों को मुबारकबाद पेश की है। ISPR के मुताबिक ये दिन शुजाअत और इत्तेहाद की अलामत है। मुसल्लह फ़ौज की कौम के साथ अपने अटूट रिश्ते की तजदीद है। मुल्क भर में फतह का जश्न मनाने और शौहदा की कुर्बानी को याद करने के लिए खुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की जा रही हैं। मार्के हक की पहली सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में यादगार शौहदा पर पुरवकार तक़रीबात का इनेकाद किया गया। वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शौहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीबात में आला सिविल और अस्करी हुक्काम, शहदा के लवाहिकीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्का हक एक साल मुकम्मल, मुल्क भर में शहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में DG रेंजर्स सिंध ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का खसूसी पैगाम भी सुनाया गया। लाहौर में भी यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कोर कमांडर लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरियों, सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पेशावर में जश्न फतह के सिलसिले में मुनक़्क़िदा तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शुरका ने शहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मार्का हक में तारीखी फतह की याद में कोयटा में भी तकरीब हुई। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला और कोर कमांडर ने शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। शुरका का कहना था, आज का दिन पूरी कौम के लिए फतह, इत्तेहाद और कुर्बानियों को याद करने का दिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।